183. Now I want to tell you about the chapter, the story, page number 83. For the more we look at the story that is a story mind, the more we disentangle it from the finer growth that it supports, the less shall we find to admire. It runs like a backbone, or may I say, a tape bomb for its beginning and end for airy veteri. Okay, and it is immensely old, goes back to Neolithic times, perhaps to Paleolithic. Okay, Neanderthal man listened to stories, if one may judge by the shape of his skull. The primitive audience was an audience of shock heads, gaping around the campfire, fatigued with contending against the mammoth or the woolly rhinoceros, and only kept aback by suspense. What would happen next? The novelist droned on, and as soon as the audience guessed what happened next, they either fell asleep or killed him. We can estimate the dangers incurred when we think of the career of such heads, such heads in somewhat later times. Such her desert avoided her fate because she knew how to wield the weapon of her fate, because she knew how to wield the weapon of suspense, the only literary tool that has any effect on tyrants and savages. Now, for the more we look at the story that is a story mind, the more we disentangle it from the finer growth that it supports. Okay, now the author is telling us about the story, that story is made up by the mind of the writer. Okay, यानी कि स्टोरी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? Mind of the writer, because of writer always make a plan to write a story. Okay, and he became capable to write down a story. ठीक है, अब वो क्या करता है? माइंड मेकअप करता है स्टोरी के लिए, और उसके बाद वो स्टोरी लिखता है. ओके, दैट इज रिलेटेड विद द मेंटल एबिलिटी ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी उसकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है उसका राइटिंग पार्ट. ओके, देन द मोर वी disentangle it from the finer growth that it supports, the less shall we find to admire. Then here the author wants to describe that we disentangle it from the finer growth. It means we want to see the finer growth of the story. Just if the story is writing by the author, by the writer, then what he had done, he attract to the readers, and bit by bit, or we can say step by step, he make a story. He or she make a story, and after it we can see here about the finer growth, and it supports. It means we can see the finer growth of story, and that it supports, the less shall we find to admire. It means we find or we can admire the things which are described in the story. कहने का मतलब ये है कि जो राइटर का माइंड होता है, माइंडसेट होता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप वो स्टोरी बनाता है. क्लियर? और उस स्टोरी को अट्रैक्ट, मतलब स्टोरी में कैपेबिलिटी होती है रीडर को अट्रैक्ट करने की. ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप रीडर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है किसको? रीडर को. और जब उसकी मेंटल एबिलिटी वहां पर डिस्क्राइब की जाती है, फाइनल ग्रोथ डिस्क्राइब की जाती है, फिर दैट इट सपोर्ट्स, द लेस शैल बी गोइंग टू एडमायर, यानी
जब वो हमें सपोर्ट करता है, क्या चीज सपोर्ट करता है? स्टोरी का थीम या स्टोरी की जो समरी होती है, जब वो सपोर्ट करती है, द लेस सेल वी फाइंड इट टू एडमायर, और फिर हम क्या करते हैं? उसकी एडमायर करते हैं। यू नो, वी हैव कैपेबिलिटी टू एडमायर द स्टोरी बिकॉज ऑफ वी लाइक इट। ओके, हम क्या करते हैं? हम स्टोरी को, लिखने वाले को एडमायर करते हैं, स्टोरी को लाइक करते हैं, उसकी एडमायरेशन डिस्क्राइब करते हैं। जब हमको उस राइटर की मेंटल एबिलिटी दिखाई देती है और वो राइटर जो कुछ लिखता है स्टेप बाय स्टेप रीडर के को अट्रैक्ट करता है उस स्टोरी को समझने के लिए, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद क्या होता है? इट सपोर्ट द लेस सेल वी फाइंड टू एडमायर, और फिर हम उसको एडमायर, प्रेज करने के लिए, एडमायर मीन्स होता है प्रेज करना, एंड वी बिकम कैपेबल टू एडमायर द स्टोरी। क्लियर? सो हियर दिस वन इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्टोरी and the interest of story and the support of story and the mental ability of the story. Okay, clear to you? Yes, ma'am. Is it clear, all of you? Tell me. First of all, you will give me answer, then I will explain next. Monik, is it Yes, clear? ma'am, clear. Okay. Then which are the points has been given here for writing the story? First point, what is here to write story? पहला पॉइंट बताइए लक्ष्मी, स्टोरी लिखने वाले का पहला पॉइंट कौन सा होता है? But the story is made up from the mind of the writer. What? Again? Again tell me. First of all, what is necessary to write a story? But how to write the story? The story is made up from the mind of the writer. Yes, mental power, intellectual power, mentality. Okay? Then mind. First has been described here. Okay? And what is second thing? Then, Growth. then Growth of the story. Growth. Growth of the story. Second thing. यानी कि स्टेप बाय स्टेप स्टोरी में इंटरेस्ट क्रिएट होता जाता है और वो हमें अट्रैक्ट करती है, लास्ट पॉइंट तक इन चीजों को बताती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है इस पैराग्राफ के अंदर? कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं डिस्क्राइब किए गए हैं? suppose यस, फाइनल सपोर्ट ऑफ द ग्रोथ। जब हमें सपोर्ट मिलता है उस ग्रोथ का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और इसके अलावा क्या होता है? साथ में एडमायरेशन मिलती है उस स्टोरी को, एडमायर। कैन यू राइट आंसर योरसेल्फ? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू कैपेबल टू राइट आंसर योरसेल्फ? व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ Good morning, ma'am. यस, बताइए, क्या आप इसका आंसर लिख पाएंगे लक्ष्मी? yes, ma'am. Okay, then we Good will morning, start. ma'am. Good morning. How are you? I'm fine. Okay. So now we will start from here. It runs like a backbone, or may I say a tapeworm, for its beginning and end are arbitrary. Okay. अब arbitrary का मतलब क्या है और इसके अलावा यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है? We will see. It runs like a backbone. क्या होता है? एडमायरेशन और सपोर्ट. What is it this of the story? Backbone of the story. और may I say a tapeworm. tapeworm का मतलब होता है एक तरीके से tapeworm आप जानते ही होंगे. What is the meaning of tapeworm? Do you know the meaning of tapeworm? Hello. Do you know the meaning of tapeworm? Worm क्या होता है ये बता दो. Yes. This one. ये पता है? कीड़ा. हाँ. लेकिन यहाँ पर कीड़ा है क्या? मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ पर? Can you tell? नहीं. और may I say tapeworm for its beginning. tapeworm की नीड होती है किस चीज की?
जो हमें प्रेरित करे, इंस्पायर करे टू राइट समथिंग। ओके, कहते हैं ना उसके माइंड में कीड़ा है, इट मीन्स he wants to do something extraordinary in his life. That is why if he has the mental ability and he has the capability to express something, एक ही चीज से काम नहीं चलता है। आपके पास मेंटल एबिलिटी है लेकिन आप उसमें उसका यूज नहीं करते हैं, then you may not write story at all. Okay, poem लिटिल बिट ज्यादा इंटेलिजेंसी की जरूरत होती है पोएम राइटिंग में, लेकिन इसमें भी मेंटली माइंड मेड अप और समथिंग वी वांट टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन आवर लाइफ, देन इट इज आल्सो इंस्पायर्ड टू अस, जस्ट लाइक वी एवर वांट टू डू समथिंग एंड वी एवर वांट टू राइट अ स्टोरी। इतनी सारी स्टोरीज लिखी हुई हैं, देन हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जब तक एक कैपेबिलिटी नहीं होती, इंस्पिरेशन नहीं मिलता, देन वी कैन नॉट राइट एनीथिंग। ओके, हम कई बार बहुत से लोग हैं जो दे आर नॉट कैपेबल टू राइट डाउन आंसर देमसेल्व्स। क्यों? बिकॉज ऑफ दे हैवंट एबिलिटी टू डू एनीथिंग, दे कैन लर्न ओनली, दे कैन नॉट राइट एनीथिंग। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी शुड राइट आवरसेल्व्स। ठीक है, हम अपने आप लिखें, और इसकी हमें मेंटल एबिलिटी तो होती ही है, साथ में ग्रोथ करने के लिए इंस्पिरेशन भी होती है, और एक ना एक मतलब पोजीशन भी होता है। पोजीशन इज वेरी नेसेसरी आल्सो। देखिए, हमारी ग्रोथ के लिए या स्टोरी की ग्रोथ के लिए मेंटल एबिलिटी, सपोर्ट, इंस्पिरेशन और हमारा पोजीशन भी बहुत जरूरी है। और पोजीशन इज वेरी नेसेसरी दैट इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, देन you should have very positive towards your activities. Okay, तुम्हें अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए पोजीशन भी चाहिए। You should be very positive towards our work. तो मतलब we should be very positive towards our work, and then you can do much better in the comparison of others. Okay, so what is necessary? Your position. किस चीज पर पोजीशन? देखिए, पोजीशन यानी हमको कोई काम अच्छा लगता है, इफ इट इज आवर प्रोफेशन, देन पोजीशन शुड बी देयर। ओके, देन पोजीशन प्लस आपका प्रोफेशन, बोथ आर नीडेड टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन आवर लाइफ। अगर हम अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, देन पोजीशन इज आल्सो वेरी नेसेसरी। क्लियर? इंस्पिरेशन एंड पोजीशन कैन गिव अस ability and capability to write something. Clear? Next. Now it is immensely old, goes back to Neolithic times, perhaps to Paleolithic. मतलब कि देखिए यहाँ पर Neolithic और Paleolithic क्या है? We see here. It is immensely क्या होता है? Immense का meaning I have told so many times to you. What is the meaning of immense? Lakshmi, what is the meaning of immense? Honit, what is the meaning of immense? गहरे रूप से। Yes, किसी चीज में डूब जाना। Okay, मतलब गहराई से किसी चीज को देखना। So here the author wants to describe immensely old, goes back to Neolithic times. Neoclassical age है लिटरेचर में। ओके, जो कि न्यूक्लासिकल एज का ऑथर्स हैं। इट मीन्स जो पास्ट ट्रेडिशंस, जो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और ये जो थे पिछले पोएट्स वगैरह, कीट्स वगैरह, ये सब जो राइटर्स थे, कैल्सवर्दी, ये सारे राइटर्स जो हैं, इन्होंने मतलब प्यूरिटियन थे ये। जैसे मिल्टन क्या है? प्यूरिटियन है, पास्ट का लिखने वाला है। उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, तो पैराडाइज लॉस्ट उस समय एनवायरमेंट ऐसा हुआ करता था कि वो पास्ट की चीजों को डिस्क्राइब करता था अपनी पोइट्री में, या अपने जो भी चीजें हैं उसके अंदर वो पास्ट का डिस्क्रिप्शन करता है। ओके, अब न्यू क्लासिकल एज में क्या था? न्यूलिथिक टाइम्स था। इट मीन्स the things were converted into the
न्यू वन. ओके, जो प्यूरेटियन है वो क्या करते थे, प्राइमिटिव के अकॉर्डिंग चलते थे. लेकिन जो स्टोरीज है यू विल सी सो मैनी स्टोरीज जिसमें न्यू एनवायरमेंट न्यू क्लासिकल एज से लगाकर, मतलब न्यू क्लासिकल एज था, क्लासिकल एज के बाद का पीरियड. ओके, अब वही बोल रहा है नियोलिथिक टाइम्स. नियोलिथिक टाइम्स का मतलब जो नया प्यूरिटन के बाद जो कम आउट हुआ, जो स्टोरीज लिखने का या पोइट्री लिखने का ये जो नया ग्रुप फॉर्म्ड हुआ, वो न्यूलिथिक टाइम्स कहलाता है. क्लियर टू यू? हेलो, इज इट क्लियर लक्ष्मी? Yes, sir. आवाज आपकी क्यों नहीं आ रही आप लोग की? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ईशा, होनित? यस मैम. ओके बेटा, दैन न्यूलिथिक एज ये कहलाती है. नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट नेक्स्ट पैलियोलिथिक, परहैप्स टू पैलियोलिथिक. पैलियोलिथिक वर्ड इट इज आल्सो रिलेटेड विद द पास्ट प्यूरेटियन टाइम्स. क्या कहना चाह रहा है वो? इट इमेंसली ओल्ड गोज बैक टू न्यूलिथिक टाइम्स. यानी जो चीजें इमेंसली ओल्ड थी गोज बैक टू न्यूलिथिक टाइम, वो न्यू टाइम में कन्वर्ट हो रही थी. परहैप्स टू पैलियोलिथिक, परहैप्स टू पैलियोलिथिक मतलब प्राइमिटिव. जैसे आपका फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, प्यूरिटियन एज, जिसके अंदर जॉन मिल्टन वगैरह थे. उसके बाद नेक्स्ट टाइम आया न्यू क्लासिकल एज, पोप वगैरह थे इसमें. रप ऑफ द लॉक लिखा है उन्होंने, पोप ने, जॉन पोप ने. उसके बाद जो न्यू स्टोरी राइटर्स थे उनके बारे में बता रहे हैं. और ये जो मिड पीरियड है ये बीच में आया पैलियोलिथिक, और ये न्यूलिथिक है, और एक क्या था, प्राइमिटिव. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Then next, Neanderthal man listened to story. अब now the author is telling about the listening portion of the story. Okay, if one may judge by the shape of his skull, कहते हैं if one may judge by the shape of his skull. स्कल का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बोला करिए प्लीज. टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कल. अगर आपको छोटे छोटे से मीनिंग्स नहीं आते हैं देन व्हाट विल यू डू? लिटरेचर में आपके सारी चीजें हार्ड है, तो देन होने टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कल. इट्स वेरी सिंपल मीनिंग. लक्ष्मी, हड्डियां. हाँ, ऊपर के सिर के हिस्सा जो है इसका यानी खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो उसके लिए बोल रहा है कि नेंडरथल मैन लिसन टू स्टोरीज सुनते थे. इफ वन में जज बाय द शेप ऑफ हिज स्कल, क्या कोई व्यक्ति उस स्टोरी को जज कर सकता है उस व्यक्ति के स्कल पार्ट से, मतलब उसके खोपड़ी, उसका सिर देखकर ये जज कर सकता है स्टोरी कैसी होगी? नहीं. द प्राइमिटिव ऑडियंस वाज एन ऑडियंस ऑफ शॉक हेड, गैपिंग ग्राउंड एंड द कैंप फायर, fatigued with the contending against the mammoth or the woolly rhinoceros. Okay, then rhinoceros and only kept aback by suspense. क्या कहना चाह रहा है वो प्राइमिटिव एज के बारे में? प्राइमिटिव एज प्राचीन काल के बारे में. प्राइमिटिव ऑडियंस जो थे, सुनने वाले श्रोता जो थे, was an audience of shock heads. shock heads क्या होता है? shock heads थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा. shock heads क्या होता है? What do you mean by shock? SHOCK क्या होता है shock का मीनिंग? जब तक मैं नेम लेके पर्टिकुलरली नहीं बोलती हूँ तब तक. क्या? अचानक से झटका लगना, है ना? तो शॉक हेड्स, गैपिंग ग्राउंड यानी गैप देते हुए चारों तरफ,
द कैंप फायर मैम के। हाँ बोलिए। टाइम हो गया मैम, टाइम हो गया मैम। ओके ओके, हो गया होगा, 2 मिनट रुकिए, ये मुझे कंप्लीट करने दीजिए। फेटिगेट विद कंटेंडिंग अगेंस्ट द ममूथ, यानी आपको ममूथ के बारे में पता है? अगेंस्ट द ममूथ, ममूथ जानते हैं? ममूथ क्या होता है? एलिफेंट का एक स्पीसीज थी, है ना, तो वो ममूथ कहलाते थे। और द होली राइनासर्स की स्टोरी एंड ओनली कैप्ट अबैक बाय सस्पेंस। और ये स्टोरीज की स्पेशलिटी क्या थी? सस्पेंस था उन स्टोरीज में। ओके, सस्पेंस स्पेशली डिस्क्राइब्ड इन द प्राइमर स्टोरीज। प्राइमेटिव टाइम की जो स्टोरीज है उनके अंदर सस्पेंस ज्यादा दिखाई देता है। हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। Okay, then now I want to close. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you, ma'am. Okay.